Tomorrow. Which exam you are having tomorrow? English. Okay, fine. All right. So yesterday, yes, Amna, I'm waiting for Mridula, and till then, I'm just giving a quick revision to Miraj, right? Then we will begin. Okay, Miraj. So just for a quick revision for you, yesterday we started a new figure which is called sphere. Okay. So I'm just telling you the formula, and only 2 questions are remaining in this exercise. So we completed 7 questions from exercise 13.4. All right. Okay, ma'am. Okay, and if you are having problem or you require some time, you can just contact us and we can arrange one class for you. Okay. All right. Now, sphere. Okay, now you know what is a sphere. It's like a ball, right? You have seen a ball. So Yes, the ma'am. difference between circle and sphere is that circle lies in a plane. So you can draw it on a paper, but a sphere occupies some volume in the space. All right. It's a 3-dimensional figure. ठीक है? Circle is a 2-dimensional figure. Now the formula, अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा एक टोटल सरफेस एरिया, आपने जो भी फिगर्स पढ़ी जैसे सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, तो आपने 2 चीजें पढ़ी. वन वाज द टोटल सरफेस एरिया एंड वन वाज द कर्व्ड सरफेस एरिया. ऑलराइट. Yes, ma'am. बट इन द केस ऑफ स्फेयर ये तो हर तरफ से कर्व्ड है, तो इसमें आप सिर्फ सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? So there is no difference between total surface area and curved surface area in this case. So the formula for the total surface area, ये क्वेश्चन में इसको सिर्फ सरफेस एरिया भी लिखा होगा, so that means it's talking about the total surface area of the sphere. ठीक है? Okay. चलिए, अब you have to remember the formula. The formula is 4 pi r square, where r is the radius of the sphere. ठीक है? This is the formula. बस अब इसमें कर्व सरफेस एरिया तो कुछ नहीं है, वो यही है जो टोटल सरफेस एरिया. सो दिस इज द ओनली फार्मूला. नाउ अब एक दूसरा, अगर हम इस स्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये कैसा फिगर बन जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस. ठीक है? राइट. Yes, ma'am. नाउ दिस फिगर इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर. ठीक है? Okay. अब हेमिस्फेयर में अगर ये हेमिस्फेयर ऊपर से ओपन है, इसका कवर नहीं है, लाइक दिस साइड इज ओपन. ठीक है? इफ दिस साइड इज ओपन, तो ये एग्जैक्टली आपके स्फेयर का हाफ पार्ट हो गया, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो एग्जैक्टली स्फेयर का हाफ हो जाएगा. राइट? Yes, ma'am. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इस केस में आप कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये ऊपर से फ्लैट है ना, इट्स नॉट कर्व्ड. तो Yes, कर्व्ड ma'am. सरफेस एरिया में सिर्फ ये कर्व वाला एरिया आएगा. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इन दिस केस will become exactly half of your sphere, so it will become 2 pi r square. ठीक है? Yes, लेकिन ma'am. अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े तो ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ दिस टॉप, इजंट इट? अब ये Yes, ma'am. टॉप किस शेप का है? ये सर्कल शेप का है. ठीक है? सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. दिस यू नो, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो बस 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएगा. सो द टोटल सरफेस एरिया विल बिकम 3 pi r square. So this you have to remember. Okay, ma'am. So these are the 3 formula and 2 questions are remaining. So I'm just starting with the question. Mridula, I think she's not coming today. So we were on question number 8. Yes, Hamna? Yes, 7th we already did. So let's start with question number 8. Okay. So this is the question. Now, what does it say? A hemispherical ball is made up of steel 0.2 centimeter thick. ठीक है, ये thickness दिया है steel का. Now, the inner radius of the ball is 5 centimeter. So, inner radius is given, which is 5 centimeter. Now, what you have to find the outer curved surface area. अब outer curved surface निकालना है तो outer radius की जरूरत पड़ेगी, isn't it? Ma'am. Yes. हाँ, अब हेमिस्फेयर कैसा है? लाइक दिस इज योर हेमिस्फेयर और ये स्टील का बना है, तो स्टील की कुछ थिकनेस है. लेट्स से मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको.
इट्स लाइक दिस। तो ये वाली जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको दी है, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर रेडियस लाइक यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा तो आप इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आउटर रेडियस। ऑलराइट, हाँ, यस। सो थिकनेस ऑफ शीट which is 0.25 centimeter. Okay, so the outer radius here becomes is equal to your inner radius plus thickness of sheet. Yes, so this becomes 5 centimeter plus 0.25 centimeter. So you get your outer radius as 5.25 centimeter. अब निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया. सो ओनली कर्व सरफेस एरिया you have to found. So curved surface area is just half of a sphere, which is 2 pi r square. All right. हाँ, So just put the values 2 into 22 by 7 into r. तो अब r इसमें आउटर वाला रखेंगे, ये जो हमने निकाला है. So 5.25 होल स्क्वायर. अब मेराज, अब ये मैं कल इन लोगों को समझाया था, आपको मैं फिर से बताती हूँ. कभी भी कैलकुलेशन में हमेशा डेसिमल हटाकर कैलकुलेशन करिएगा, वरना उसमें मिस्टेक का चांस ज्यादा yes होता है, ma'am, ठीक है. I do. Yes, so first of all you remove this decimal and make it 525 divided by 100. All right, then square. Okay. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो आपको 44/7 हो गया इंटू. So you get like 525 divided by 100 into 525 divided by 100. Now you can simplify this thing. Is it divisible by 7? 7 9 से कितना होता है, 7 7 से 49 होगा, कितना बचेगा, 335. Yes, it is going. So 7 into 1 and then 7 into 7 is 49 and then you are remaining with 335. 7 5 are 35. Now Hamna, quickly multiply this thing. So you have to multiply now 44 into 75 into 525. So tell me, both of you multiply this thing and tell me. Ma'am, 1732,500. 1732,500. Right. Okay. So like 2 zeros will go and then you put your decimal. So you will get 173.25. Is this the answer given in your book? Please check with your NCERT book. Yes, ma'am. Okay. Yes, Miraj? Yes ma'am. So in this chapter, see formula तो वही 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वही रिपीट होंगे, लेकिन you have to be very accurate at your calculation. That's it. और कैलकुलेशन, आई मीन आप अभी से आदत डालिए एक्यूरेट करने की, सो दैट विल हेल्प यू इन योर क्लास 11th एंड 12th वेयर यू विल बी सॉल्विंग सम, यू नो, वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी फिजिक्स में स्पेशली, वेयर यू रिक्वायर वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ कैलकुलेशन. सो अभी से आप उसको आदत डालिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now this is the question. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Okay. Find the surface area of the sphere. अब पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का. मैम 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? यू नीड आर, राइट? ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है ना. राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर. ओके. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर. अब ये कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो यही होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर. और इसमें जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट चेक कि आंसर किस टर्म्स में दिया हुआ है. यस, ओके, आर की टर्म्स में दिया हुआ है. ओके, ठीक है. तो ये फर्स्ट का आंसर तो डायरेक्टली यही हो गया ना, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? you cannot do anything else because radius r दिया है. ठीक है. Now you have to find curved surface area of the cylinder. Now what is the formula for the curved surface area of the cylinder? हम ना 2 pi r h, right? यस मैम. अच्छा, तो इसमें r तो r आपको दिया है, लाइक r ही दिया है, बट यू डोंट नो व्हाट इज h. तो इसमें हाइट पहले पता करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब ये बोल रहा है कि सिलेंडर के अंदर स्फेयर पूरा फिट हो रहा है. So that means the diameter of the sphere is equal to the height of the cylinder, isn't it? यस मैम. Yes, Miraj? Yes, ma'am. हाँ, तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे. और फर्स्ट का आंसर तो यही हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली. नाउ सेकंड में diameter of sphere, sorry, S, okay, I've written wrong spelling, SPHERE. Diameter of sphere is equal to height of cylinder. ठीक है. तो डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा? रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, राइट? तो आपका h आ गया, h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r. नाउ योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, the formula is 2 pi r h. So just put the value of h, 2 pi r into h is 2r. So you get 4 pi r square, which is also same, right? Yes, ma'am. चलिए, अब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, थर्ड पार्ट. सो रेशियो निकाल लीजिए. रेशियो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. आपको इसका रेशियो निकालना है. So surface area of sphere was 4 pi r square and curved surface area is also 4 pi r square. So the ratio becomes 1:1. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, लाइक इट्स, अगर इस तरह से आप एक स्फेयर को फिट करेंगे किसी सिलेंडर के अंदर, तो उस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, राइट? So we are done with it. Let's start with new exercise 13.5. Have you written? Yes, Miraj, have you written? Yes, ma'am. Okay. 13.5. Okay, so now, so far, let us have a quick revision. Yes, Hamna, are you there? Yes मैम. So as I told you, in this chapter, you have to study two things. One is called surface area
of different, sorry, surface area of different figures, and then you have to study about the volume of different figures. All right. So basically you studied 5 types of figure. The first figure you studied was पहली फिगर क्या पढ़ी थी हमने क्यूबॉइड, राइट? Yes, ma'am. चलिए क्यूबॉइड, ठीक है। फिर हमने क्यूब पढ़ा, वैसे क्यूब और क्यूबॉइड वो एक ही जगह मान लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यूबॉइड था, क्यूब था। देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट सिलेंडर, राइट? ओके, देन वी स्टडीड अबाउट कोन and we studied about sphere. Is there anything else? Ma'am, hemisphere. हाँ, हेमिस्फेयर स्फेयर का ही पार्ट हो गया। चलो लिख लेते हैं इसको, हेमिस्फेयर भी लिख लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो 6 टाइप्स ऑफ फिगर हो गए जो आपने अभी तक पढ़े हैं। नाउ अब इसमें एक, चलिए टोटल, अब सरफेस एरिया भी 2 तरह का पढ़ा है। वन इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया एंड देन okay, then you studied about curved surface area. All right, volume हम अभी पढ़ेंगे। So let's have a quick revision. Now for cuboid, what was the total surface area of a cuboid, Miraj? Two into LB plus BH plus LH. LB plus BH plus LH, ठीक है। और क्यूब का क्या था? देखिए माइंड में इमेजिन करिए मिराज, क्यूब है ना, कोई क्यूब होता है, उसकी square. एक साइड एल है तो ये भी एल ही है, ठीक है। तो एक साइड का एरिया एल स्क्वायर हो गया, और टोटल कितनी है, 6 साइड्स हैं, तो 6 एल स्क्वायर हो गया, या 6 ए स्क्वायर, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। Yeah. चलिए, अब ये क्योंकि कर्व्ड फिगर नहीं है तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कम टू सिलेंडर। यस हमना, व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? Ma'am, 2 pi RH into R plus H. हाँ, तो बेसिकली वो 2 पाई आर एच उसका कर्व सरफेस एरिया था, और प्लस फिर 2 बार हम उसका टॉप और बॉटम ले लेते हैं, राइट? सो दिस वाज द फॉर्मूला, है ना मिराज? जो सिलेंडर था, इफ यू रिमेम्बर मिराज, अब इसका टॉप भी एक सर्कल है और बॉटम भी एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो टॉप और बॉटम का तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस उसका कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच था, तो उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, राइट? Yes, ma'am. तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच, ठीक है। देन कोन, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोन? Ma'am, pi R into R plus L. कर्व सरफेस एरिया कितना था इसका, कोन का? Ma'am, pi R L. पाई आर एल, यस मिराज? Yes, Cone, ma'am. were you there in the class when I was telling the formula for a cone? Yes, ma'am. Okay, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, एल इज द स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये टॉप वाला एरिया भी मिला देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया विल बिकम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट, नाउ स्फेयर अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया भी सेम थिंग। हेमिस्फेयर में टोटल सरफेस एरिया विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर, oh sorry 3 pi r square, and curved surface area is 2 pi r square, ठीक है। So these were the formula so far. Now we will start about volume. अब हम ऐसे ही एक एक करके पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। So let us start with the volume of cuboid. Now how does a cuboid look like? You all know. Now the cuboid has a length L, right? Then you have your breadth B and the height of the cuboid H. Okay, so the volume will become
length into breadth into height. So this is the formula, all right? Or LBH, you can say. अब क्यूब भी यहीं पे पढ़ लेते हैं. Now क्यूब, अब देखिए क्यूब में लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सब सेम है ना, राइट? ma'am. So that means it will be side into side into side. So it will become side cube or a cube, whatever you can write it, L cube, कुछ भी लिख सकते हैं, a cube, L cube. ठीक है हम ना? Yes, ma'am. Yes, so these are the two formula for this exercise. So let's start with the exercise now. I'm skipping the examples. Should I do the examples also, or you can do it? Okay, I'm just leaving them for now. If you face any kind of problem, just let me know. Okay, now what does it say? A matchbox measures, these are the dimensions of the matchbox. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? ठीक है? Now length is 4 centimeter, breadth is given 2.5 centimeter and height is 1.5 centimeter. ठीक है, तो पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. अब मैच बॉक्स किस शेप का है? इट्स अ क्यूबॉइड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो मल्टीप्लाई 4 into 2.5 into 1.5. ठीक है? Now you can directly multiply if you wish, or you can just first remove the decimal and then simplify it. चलिए एक हम थोड़ा, if you wish you can just simplify it a little bit. You want to do it? Or you simply see it's multiply करिए इसको directly. 25 into 4 कितना होता है? 100, right? Yes, ma'am. हाँ. So it will become simpler like this. So all 0 will go out and the answer is 15. 15 centimeter cube. So you don't have to multiply here. Okay. Now what will be the volume of a packet containing 12 such boxes? अब एक मैच बॉक्स का इतना वॉल्यूम है और पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्सेस हैं, तो पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा? तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 12, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 12 into volume of one matchbox. So this is 12 into 15 centimeter cube. And what is 12 into 15? Tell me. Ma'am, 180 centimeter cube. 180 centimeter cube is the answer. Yes, any problem, Miraj? No, ma'am. Okay. चलिए, now in the next question you will do the calculation. Hamna, you will not say the answer. A cuboidal water tank is 6 meter long और ये सब dimension दिया है, तो आप पहले लिख लीजिए. Length is 6 meter, breadth कितना है 5 meter and height of tank is 4.5 meter. ठीक है. How many liters of water can it hold? अब ये बताना है कि कितना लीटर पानी आ सकता है, लेकिन अभी आप अब
कितना लीटर आ सकता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैंक क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? यस महराज, अब टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है तो टैंक की क्या क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको? You have to find the volume of the tank, isn't it? Yes, ma'am. अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब वो अपने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यस हम ना? Yes, ma'am. हाँ, तो टैंक के अंदर कितना स्पेस है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वॉल्यूम तो आपका मीटर क्यूब में आएगा बिकॉज लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब मीटर में है, तो और आपको आंसर चाहिए लीटर में। अब उसके लिए आपको कन्वर्जन स्केल दिया हुआ है, ठीक है, सो यू विल यूज इट लेटर ऑन, बट आप पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, अब क्यूबॉइडल शेप का है, सो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो दिस इज 6 इंटू 6 मीटर्स इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। अब देखिए 3 बार यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए आंसर मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। ओके, सो आई कैन राइट इट 6 इंटू 5 इंटू 45 को मैं लिख रही हूँ 45/10 और इसको मीटर क्यूब लिख दिया, तीनों m को एक साथ लिख दिया। चलिए 6 इंटू 5 इज 30, राइट? 30 into 45 divided by 10 meter cube. So this 0 will go out and you multiply it with 3. So 3 into 5 is 15, carry 1 and 135 meter cube. Yes? ठीक है, चलिए अब मीटर क्यूब में निकल गया वॉल्यूम, बट आपको बताना है कि कितना लीटर पानी आ सकता है। तो इसको कन्वर्ट करिए। अब यहाँ पे दिया है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट? ये आपको याद भी रखना है, किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो सकता है, सो यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है हम ना? Yes, ma'am. 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर्स, ठीक है। अब आपके पास कितने हैं? 135 मीटर क्यूब। सो ये अभी लाइक इसको आगे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू सर 1000 या 135 इंटू 1000 लीटर्स, ठीक है। सो इट विल बिकम लाइक 135000 लीटर। तो इसको ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं और इसको यहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी में कॉन्टिन्यूएशन में। अब देखो यहाँ तक आंसर आपका मीटर क्यूब में था, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो योर आंसर विल बिकम इन लीटर, ठीक है। यस, यस मिराज। Yes, ma'am. देखिए जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब यहाँ पे लीटर लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे। सो आप ऐसे डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं या फिर आप अलग से इधर भी करके दिखा सकते हैं, तो इज नो प्रॉब्लम। सो एक लाइन लास्ट में लिख देना इसमें, द वाटर टैंक कैन होल्ड can hold 135,000 liters of water. Yes, Amna, any problem? No, ma'am. Okay, please note it down. Yes, Miraj, have you written? Yes, ma'am. Okay, let's do the next question. Now, what is it saying? A cuboidal vessel, 10 meters long. So the length of the vessel is 10 meter, 8 meter wide. So the breadth is given 8 meter.
How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? चलिए, इसका मतलब हाइट आपको नहीं पता, यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, बिकॉज पूछ रहा है हाउ हाई मस्ट इट बी मेड. अब उसका वॉल्यूम इस केस में गिवन है, और वॉल्यूम किस में गिवन है? क्यूबिक मीटर्स में, यानी मीटर क्यूब में गिवन है. ठीक है, तो आप, मैम। हाँ, तो इसमें लीटर का कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स ऑलरेडी आपको मीटर क्यूब में ही वॉल्यूम गिवन है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना गिवन है? 380 मीटर क्यूब. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट? Yes, ma'am. तो वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 380 मीटर क्यूब, और लेंथ भी गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर, और हाइट गिवन नहीं है. तो इस इक्वेशन से h निकल सकता है. there is only one unknown quantity, right? Yes, ma'am. तो h कितना हो जाएगा? h will become your 380 मीटर क्यूब divided by 10 मीटर into 8 मीटर. तो अब आप देख सकते हैं, इन द डिनोमिनेटर में आपके पास 2 मीटर हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर में 3 मीटर हैं. तो जब आप 2 मीटर से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर में क्या बचेगा? सिर्फ मीटर बचेगा. इसीलिए आपका आंसर हाइट का मीटर में आएगा. यस मेराज? Ma'am. हाँ, ये यूनिट्स पे बड़ा ध्यान दिया करें आप कि ये कैसे कन्वर्ट हो रही है. यस हम ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसीलिए अब जो आंसर आएगा आपका, जो कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ m बचेगा. सो बिकॉज 2m विल कैंसिल आउट, ओनली 1m विल रिमेन, सो हाइट विल बी इन मीटर्स. चलिए नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो एक जीरो से जीरो तो कैंसिल हो ही गया है. इस 38 is not divisible by 8, so you can just simplify it a little bit. 2 से करो इसको डिवाइड. सो 2 into 4 and 2 19 by 4, इसको कितना डिवाइड करेंगे? So 4 4s are 16, and then 40, नहीं, सॉरी, 4 4s are 16, और कितना बचेगा? 3 बचेगा, नहीं, 3 बचेगा. 30 में जाएगा. 4 7s are 28, and then 24.75 meters should be the answer. Yes हम ना? or you can just do it like this. Yes Miraj? 4 4 16, ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा, तो आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे. 4 into 7 is 28, then you will get 2 here, so you'll put 1 0. 4 into 5 is 20. Yes, so Yes, ma'am. 4.75 meters should be the answer. Yes, is it matching with your book? Yes, ma'am. Okay, so note it down. I'm going to the next question now. Okay, next question. Now, the capacity of a cuboidal tank is 5000 liters of water. अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो वॉल्यूम गिवन है टैंक का, वो लीटर्स में गिवन है. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मीटर क्यूब में गिवन था, इसमें लीटर्स में गिवन है. ध्यान से देखना है, ठीक है. अब कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है. यस मेराज? यस मेराज? Yes, ma'am. हाँ, कैपेसिटी का मतलब यही है ना कि वो कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है. दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है. सो द वॉल्यूम और कैपेसिटी कुछ भी लिख सकते हैं, या कैपेसिटी, यू कैन यूज एनी वर्ड, ऑफ टैंक which is given to be 50,000 liters. ठीक है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक. तो ब्रेथ निकालना है,
और लेंथ कितना दिया है 2.5 मीटर एंड डेप्थ यानी हाइट, डेप्थ और हाइट एक ही बात हुई ना? यस, 10 मीटर। यस मिराज, डेप्थ का मतलब वही है कि कितना गहराई है, दैट मीन्स जो हम हाइट जिसको कहते हैं इट्स द सेम थिंग। चलिए, अब ये मीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, तो हमको पहले इस वॉल्यूम को, कैपेसिटी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लीटर है, यस, हम ना इस लीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इसको ऐसे मानिए ये 1 लीटर है। अब यू नो द स्केल, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 लीटर। ठीक है, यस। हाँ, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लीटर की, यानी ये देखना है कि 1 लीटर कितना है। तो इस एल को इधर, सॉरी, 1 लीटर निकालने के लिए इस 1000 को हम यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में। सो इट विल बिकम 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। तो अब यहाँ पर सिर्फ 1 लीटर बचेगा ना? यस, यस, एनी प्रॉब्लम? नो रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। अब इस 1 लीटर की वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस लीटर की जगह। तो इसका मतलब अगर हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, so we will do 5000 इंटू 1/1000 करना पड़ेगा, तो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. कंफ्यूजन है तो अभी बताओ, कोई भी कंफ्यूजन है तो आई रिपीट इट। यस, शुड आई रिपीट? मेराज, Okay. शुड आई रिपीट? Okay, ma'am. ओके, व्हाट, रिपीट और नॉट? Repeat. ओके, तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, यू कैन जस्ट टेल मी वेरी क्लियरली। ठीक है, चलिए इसको मैं पूरे लीटर की जगह एल ही लिख देती हूँ जस्ट टू मेक इट अ बिट क्लियर। ठीक है, अब आंसर आपका लीटर में गिवन है, आपको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम ना अब Yes, यहाँ पे, ma'am. अब देखिए मेरा, आज आपने ये पढ़ा था ना, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। मैंने जस्ट इसको इधर और इसको इधर लिख दिया। एनी Yes, प्रॉब्लम? ma'am. हाँ, No. तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1 लीटर मीन्स ये 1000 इधर डिवीजन में चला जाएगा। यस, Yes, ma'am. है ना, ऐसे ही होगा ना? और Yes. आपके पास कितने लीटर हैं? 50,000 लीटर। 50,000 लीटर का मतलब ये हो गया कि अब 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। ऐसे यूनिटरी मेथड में यही करते थे ना हम। यस, दिस सिंपली यूनिटरी मेथड। उसमें ऐसे ही होता था ना कि जैसे कुछ 1000 लीटर की वैल्यू दी है 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर कितना हो गया, 1/1000 मीटर क्यूब। और आपके पास कितने लीटर थे, इतने लीटर थे, तो उसने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। These three zero will get cancel out, so the answer will be 50 मीटर क्यूब। Any problem here? No, ma'am. हाँ, तो इसको आप मतलब साइड में कर सकते हैं, and therefore you will convert your answer and you will write this is equal to 50 मीटर क्यूब। मतलब ये कन्वर्जन आप साइड में कर सकते हैं या अलग से स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो गया 50 मीटर क्यूब। अब तो बस आपको ब्रेड निकालना है, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। नाउ द वॉल्यूम फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये नहीं पता। सो दिस यू कैन फाइंड आउट नाउ। तो वॉल्यूम हमने कितना निकाला, 50 मीटर क्यूब। लेंथ इज 2.5 मीटर इंटू ब्रेड्थ यू हैव टू फाइंड आउट, हाइट इज 10 मीटर। तो बस यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लीजिए। So your B will become 50 मीटर क्यूब divided by 2.5 मीटर into 10 मीटर। यस, चलिए अब ये वाला डेसिमल हटाते हैं 25 का, तो इसमें डिनोमिनेट न्यूमरेटर में 10 चला जाएगा।
तो यू विल गेट इट लाइक दिस। ठीक है, आंसर अब मीटर में बचेगा बिकॉज एक ही एम बचेगा, 2 m से 1 m, 2 m कैंसिल आउट हो जाएंगे। So this 10 will get cancelled out and 25 into 2 is 50, right? So the answer is 2 meter. Yes, Hamna? Yes, ma'am. So please note it down. Yes, Miraj, आपको एक चीज और जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू रिपीट। देखिए, आपको जिस यूनिट में ऑलरेडी गिवन है, जब आप ये कन्वर्जन करें, किसी भी यूनिट का कन्वर्जन करें, यस हमना, ठीक है, तो जो यूनिट आपको गिवन है आप उसको इधर लेफ्ट में रखिए और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको राइट साइड में रखिए। ठीक है, एंड इफ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ऑल राइट। Okay, ma'am. हाँ, आई मीन इस तरह के बहुत रिलेशंस होते हैं ना, जैसे आपको पता है दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो अगर आपको, सो दैट लाइक अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, तो फिर आप ऐसे ही लिखेंगे दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो योर 1 सेंटीमीटर विल बिकम 1/100 मीटर। ठीक है, अब लेट्स से कि आपका कुछ 40 सेंटीमीटर था जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सो योर 40 सेंटीमीटर विल बिकम 40 into 1/100 मीटर। So this time the answer will be in meter. ठीक है, तो ये ऐसे लाइक 4/10 जो भी आएगा तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, या यस हमना, एनी प्रॉब्लम हियर? No, ma'am. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अभी कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 5, ओके 6th। 5. यस, सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं, लाइक दे आर लाइक दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दे आर अ बिट डिफरेंट क्वेश्चंस। चलिए इसको करिए। सॉरी। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day। यानी एक आदमी को कितना पानी चाहिए दिन में? 150 लीटर। ठीक है, पर हेड पर डे, एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर्स पानी चाहिए। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 4,000। तो रोजाना कितना पानी चाहिए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ इट हैज अ टैंक मेजरिंग दिस। अब विलेज में कोई टैंक है जिसका कुछ मेजरमेंट आपको दिया है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस दिस टैंक लास्ट। अब बताना है कि ये पानी कितने दिन चलेगा। यस हम ना, Yes, तो ma'am. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना पानी चाहिए आपको, तभी आप पता करेंगे ना कि कितने दिन चल पाएगा। तो टोटल कितना पानी पूरी पॉपुलेशन को एक दिन में चाहिए, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे। यानी एक आदमी को एक दिन में कितना चाहिए? 150 लीटर। ठीक है, अब देखिए लीटर में दिया है और ओके। अब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 4,000। सो या खाली वाटर नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर लिखेंगे।
amount of water required per head per day, 150 liter. Okay, so the amount of water required for the whole population per day, यानी एक दिन में कितना चाहिए पूरी पॉपुलेशन को। पूरी पॉपुलेशन कितनी है 4000, तो 4000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, so what is the answer? Like you will have 4 zeros here, and then 15 into 4 is how much? 60, right? तो इतना लीटर, अब आंसर आपका लीटर में है। अब देखिए, क्योंकि टैंक का डायमेंशन तो मीटर में दिया है, मीटर क्यूब में आंसर आएगा, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस लीटर इनटू मीटर्स अगेन। अब आपको पता चल गया है लीटर को मीटर में करना होता है, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। यस, मैम। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया है। तो अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अब आंसर किस में बन गया? मीटर में बन गया, मीटर क्यूब में, सॉरी। यस, यस मैम। हाँ, खाली मीटर नहीं लिखना है, मीटर क्यूब में, बिकॉज रिलेशनशिप यही है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, यस हम ना? Yes, हाँ, ma'am. तो आंसर मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। अब 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए इसमें से, सो योर 3 zeros विल गो आउट एंड द आंसर इज 600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना पानी पूरी पॉपुलेशन को एक दिन में चाहिए। दिस इज पर डे, प्लीज नोट, राइट? ओके, अब हमारा टैंक का डायमेंशन गिवन है, तो हम टैंक की पहले पता कर लेते हैं टैंक के अंदर पानी कितना है। यस मेराज? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब हम टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, या उसकी कैपेसिटी कहें या वॉल्यूम कहें। तो यस, सो व्हाट वी विल राइट, चलिए इसको क्या लिखें, कैपेसिटी ऑफ टैंक लिख सकते हैं, राइट? तो हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम या कैपेसिटी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑफ टैंक। वो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है हम ना बताओ? लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? यस मेराज, व्हाट इज द लेंथ इन द क्वेश्चन गिवन? मेराज, नो रिस्पॉन्स, Yes, वेयर आर ma'am. यू? यस, ये गिवन है ना सब सामने आपके, 20 इंटू 15 इंटू 6। तो इसमें लेंथ Yes, कितना है बताओ? ma'am. 20. हाँ, व्हाट इज द ब्रेथ? Ma'am. 15. 15, एंड व्हाट इज द हाइट? Ma'am. 6 meter. 6 meters। ओके, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, कितना आएगा ये बताओ? 50, सी ऐसे करो इसको, देखो अब कोई मल्टीप्लिकेशन करना सीखो। ये 20 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो एक जीरो आप डायरेक्टली लिखिए, ठीक है? और 2 इंटू 15 कितना होता है? 30, सो यू विल गेट 300, राइट? इंटू 6 मीटर क्यूब। So now it's easy to multiply. So 2 zeros will remain and 6 into 3 is 18. Yes, Miraj? यस मैम। चलिए, अब आपको ये पता चला कि एक दिन में इतना पानी चाहिए और टैंक के अंदर टोटल का इतना पानी है। तो ये पानी कितने दिन चलेगा, ये तो आप देख कर बता सकते हैं। बताइए कितने दिन चलेगा मिराज? देखिए, कैन यू रिपीट? देखिए, एक दिन में पूरी पॉपुलेशन को इतना पानी चाहिए, ठीक है? यस मैम। और टैंक के अंदर इतना पानी है, तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये पानी कितने दिन चलेगा। ऐसे सिर्फ देख कर बताओ, अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ मैं। जस्ट लुक एट दिस एंड टेल मी कितने दिन चलेगा ये पानी। थोड़ा दिमाग भी चलाना सीखो भाई। Ma'am. 3 days. अच्छा, 3 days। मेरा आज आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगा?
मेराज अपना पेन नीचे रखो, कॉपी की तरफ देखना बंद करो और जस्ट ऐसे ही देख कर बताओ, ठीक है? एक दिन में इतना पानी चाहिए पूरी पॉपुलेशन को और टोटल पानी इतना है, तो ये पानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये तो देखकर पता चल सकता है। सी थिंक इट लाइक दिस, थोड़ा सा हट, लाइक पेन को रख के भी कभी कभी माइंड चलाना चाहिए, ठीक है? देखिए ध्यान से, अब एक दिन में देखिए कितना पानी खर्च हो रहा है, 600, राइट? मैम 2 दिन में कितना हो जाएगा, इसमें 600 और ऐड करिए तो कितना हो गया, 1200। यस। 3 दिन में कितना होगा, फिर से 600 यूज होगा तो कितना हो जाएगा, 1800। और यही टैंक में पानी है, तो देख कर पता नहीं चल रहा है आपको कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा? यस। यस। अरे भाई, आप कैलकुलेट कर लो, एक दिन में कितना, 600, 2 दिन में कितना, फिर से 600, 3 दिन में फिर से 600, तो ऐड करते चले जाओ, देखो कितना बन रहा है। तो 3 दिन में टोटल हो ही रहा है 1800, तो इन्हीं 3 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। यस। यस मैम। हाँ, बस इसको आप ठीक से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? मैथ्स को इसलिए नहीं होती है एकदम कॉपी करने के लिए, यू हैव टू यूज योर माइंड ऑल्सो समटाइम्स। यस। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर इन द टैंक विल लास्ट। ये निकाल रहे हैं ना हम, वाटर इन द टैंक विल लास्ट, राइट? अब ये कैसे निकालेंगे, लाइक टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक या कैपेसिटी ऑफ टैंक, कुछ भी लिखेंगे, एक ही बात है। अब यानी टैंक में टोटल कितना पानी है और एक दिन में कितना पानी चाहिए, ठीक है? डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन पर डे। देखिए ये सिर्फ लिखने का स्टेप्स हैं, बाकी आपको माइंड में पहले से पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या आंसर आने वाला है, राइट? हम ना, हाँ, Yes, या दीज आर जस्ट द स्टेप्स कि आप भाई इसको तरीके से लिख के बता रहे हैं, बट यू शुड यूज योर माइंड कि आप कर क्या रहे हैं, यू शुड नो दिस, ये आपको एडवांस में पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1800 मीटर क्यूब एंड एक दिन में कितना पानी चाहिए, विच इज 600 मीटर क्यूब। सो यू विल गेट द आंसर 3, यानी 3 दिन चलेगा। फिर से एक लाइन लिख सकते हैं, वाटर विल लास्ट इन द टैंक फॉर 3 days। या ऐसे मत लिखो, नंबर्स में ही लिखो, फॉर 3 days। ओके, बस दिस इज द आंसर। Yes, please note it down. Have you written? Should I scroll, Miraj? यस मैम। तो पहले क्यों नहीं बोलते हो, मैं पूछती हूँ तो बोलते हो, हाँ? डोंट फील शाय, प्लीज टेल मी। चलो, आई थिंक आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज अगेन आई थिंक इट्स अ बिट लॉन्गर क्वेश्चन। So you note it down, then I'll end the class. नोटेड। Okay, I'm just scrolling.
All right then. Yes, have you done, Miraj? Yes, ma'am. Should I end? Yes, ma'am. Okay. Okay then. Okay, bye. Good luck for your test tomorrow. Thank you. Okay, bye. Bye.